So, welcome all to Mother Talks, and I am Dr. Sabiha. Mother Talks is mother daughter talks, where me and my daughter we usually come on live, or it's free for all the audience. And today's topic is how to deal with criticism. So yes, usually screen पे मैं और मेरी बेटी दिखते हैं. That's how we start. But let me tell you all, it's open to all. Anyone who wants to share their opinion about criticism, how to deal with criticism, how to take criticism, how to give criticism. So that's the broader topic we have today. So the format of the show is me and my daughter, we are in discussion with each other. Discussion is all around criticism. Anyone who wants to join live can send us request. Anyone who has a question can keep a question to us. Anything and everything related to criticism. So मुझे मेरी बेटी को पहले अंदर लेने दो. विश्वा. Oh, Vishwa. Hi, Vishwa. I am Faiza's mother. Finally, we could at least see each other on live. Or I could see your name on live. Madhurika, thanks for joining. Jaydeep, thanks for joining. Faiza, could you join, beta? मैंने यहाँ पे कमेंट पे पिन करके रखती हूँ. How to deal with criticism. ए खुशी, थँक यू फॉर जॉइनिंग. हो सायकल डॅडी, कशा आहात साहेब? कब आएगा भाई मेरे लाइव पे तू, क्या पता. How to deal with criticism. I have to pin comment. I did that. फैजा, आप सामने से मुझे लाइव का रिक्वेस्ट भेजो बेटा. हाँ बेटा. साक्षी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. साक्षी, माय टीम इज वेरी सिंसियर. मेरी टीम के सारे बंदे ज्वाइन हो जाते हैं लाइव पे. फैजा, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज के देखते हो क्या? क्योंकि कल भी ये इश्यू हो रहा था बेटा लाइव लेते वक्त. So Madhurika, Jaydeep, Santosh, Vishwa, Ali, Khushi, and everybody stay tuned. We have an awesome discussion on how to deal with criticism. हाँ, Ali Mohammed, Shukriya Ali for joining. We have a good discussion on how to deal with criticism. नहीं हो रही है join. इंस्टाग्राम पे आना और एक टॉपिक डिस्कस करना और डिक्लेयर करना कि अभी हमारा लाइव है और उस गेस्ट को अंदर लेना हैज बिकम अ बिग टास्क. So let me try again. Meanwhile, guys, anybody else can they can also send me request. आप शेयर कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्रिटिसिज्म कैसे मिला है आपको. पहले तो भैया रुकते हैं. थैंक्स अली मोहम्मद. कहाँ से हो आप अली? कल्पेश दादा, काय म्हणतो दादा? दादा लिहिलं याचा अर्थ मराठीत असेल असं अज्युम करते मी. नामदार. Anybody who is live, can you guide me how should I take this Faiza in? Kulhar Dika 9. फैजा, yesterday यही इशू हुआ था बेटा उमैर खान के साथ, वो भी लाइव नहीं. कल्पेश, थैंक्स. हाय कल्पेश. अली मोहम्मद, हाय. कोई और ज्वाइन कर सकता है क्या? अली मोहम्मद, हैदराबाद से हो आप? सो नाइस. हैदराबादी बात करते हो? कब आए, खाना खाए क्या, अच्छे हैं क्या? नील बोई, वेर आर यू फ्रॉम? I'm waiting for my daughter to join because it is she and me who will talk on criticism. How to deal with criticism. Criticism किससे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसका क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए, किसका इग्नोर करना चाहिए, देना है तो क्रिटिसिज्म कैसे देना चाहिए. ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, बशर्ते अगर मेरी बेटी ज्वाइन होती है तो. वरना आई एम ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टॉक्स. आप भेजो ना एक बार. आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग तब से ना, अब आप भेजो. देखो मेरी बेटी का गुस्सा चढ़ गया है तो मैंने भेजा है. अभी फैजा मैंने भेजा है आपको. नहीं, ज्वाइन नहीं हो पाई. हैदराबादी बात करते हो आप अली मोहम्मद? अच्छा, अली को मैंने भेजा है रिक्वेस्ट. मेरे हस्बैंड और माय डॉटर, माय टू पिलर्स ऑफ माय बिजनेस, आर ट्राइंग टू जॉइन मी नाउ.
Okay, Faiza, restart your Instagram. Hello, auntie, I'm from Pune. Please, no auntie business here. Thanks, Neil boy. What you do in Pune? Acha, Ali could join. Hi, my husband. Hello, darling. How are you? Faiza, please, Ali could join. अभी मैं देखती हूँ. Abu, let me check if Faiza can join. Guys, this is my family. Hey, Is my hi dad. guys, how are you? Hey, Ultimate has joined in. Hi, Al. How are you, buddy? So अल्तमश nice to see you देखो, over here. मेरे हस्बैंड से इंस्टाग्राम पे बात कर रही हूँ. Why not me? Yes, Instagram is unfair, Faiza. Abu could join yaar. Why can't you join? It RKP is all about thanks network. for It is all joining. about network. So let's get going. You were talking about criticism. Yeah. Yeah, So I just wanted to make a comment over here that there are two types of criticism. One is a constructive criticism, and the other is not so welcome criticism, that is cynicism. So one that you say constructive criticism, it's more about a feedback that the other person wants you to improve on something. Are you there with me? Yeah. yeah, absolutely. But meanwhile, even Faiza is trying to send requests to me. So I'm trying Okay. to connect with her. Okay. Okay. So when Here you, she comes. yeah, good. Abu, thank you for supporting us by joining us. Now you can say bye to us. Bye bye. बाय. इसको बोलते हैं Love you. फैमिली. अपने बुरे वक्त में साथ देने वाला मेरा हस्बैंड. बाय Okay. हस्बैंड. बाय You बाय. can Bye. you can see me off now. Yep. Bye. Hi, From there, people. फैजा, there इससे you like. पहले कि मेरे फॉलोअर्स निकल जाए, वी नीड टू स्टार्ट विद द डिस्कशन. Yes, please. Yogini, thank you Yogini for joining. So once again, Yeah, welcome. doctor, you have to remove me. Apu, you need to put cross. आप हाँ. ऊपर एक क्रॉस रहता है, उसको दबा दो. Yep. मॅडम, आपलं इंस्टाग्रामवर स्वागत आहे. Thank you. बराच नील बोई, आय मीन कॉलेज इन बिशप्स ओनली. ओ, Hi, Neil. अच्छा, Yes. योर फैजाज फ्रेंड. ओके, तो भैया ये मेरे विश्वा को ना बोल के रखना चाहिए. विश्वा को बोल के रखना चाहिए नहीं आने. लास्ट टाइम ऑल्सो ही केम, मेरा ग्लिच हो गया. विश्वा, हाँ, वो आते मेरा ग्लिच हो जाता है. कुछ नहीं बोलो. बस वो जो भी नील था उसको बोलो कि आंटी वाला इधर नहीं चलेगा. ये मम्मा बिशप्स के लोग हैं, इधर नहीं सब ऐसा करो. मैम बोल सकते हैं ना, असीम कैसे मैम बोलता है. Okay, let's start. Okay, so there is a serious topic today, how to deal with criticism. फैजा, आप पहले आपके 3 पॉइंट्स रखोगे, मैं मेरे 3 पॉइंट्स रखूंगी. Anyone from the audience is feel free to open up. नील बोई, हाय फैजा. उसको नाही. Hi, सायकल डॅडी कशा आहात तुम्ही? वो इधर है अभी नासिक में. You should Anyway. join. हाँ, चल फैजा. So the structure is, आप 3 पॉइंट्स बताओ, then मैं 3 पॉइंट्स बताती हूँ, and then let's keep it for the audience to join or ask us question. ठीक है. Okay? So I begin. हाँ. ठीक है. तो when it comes to criticism, पहला पॉइंट आई वुड से कि हम किससे क्रिटिसिज्म ले रहे हैं. जैसे अभी मैं और अब्बू हम लोग कैनवा का सब बनाते हैं, तो हम लोग हर किसी से नहीं पूछते. जैसे अगर अब्बू ने कोई कैनवा डिजाइन बनाया तो अब्बू मुझे पूछेंगे, तुमको पूछेंगे. तो वी डोंट गो एंड आस्क बड़ी खाली या सुमी खाली, बिकॉज दे आर कंप्लीटली ले पर्सन हु हैव नो आइडिया कि हम क्या वर्क करें. तो हम जिससे क्रिटिसिज्म ले रहे हैं, दैट पर्सन शुड बी रेलेवेंट टू व्हाट वी आर डूइंग, और एटलीस्ट दैट पर्सन शुड नो कि
उनका क्या रोल है, उन्होंने कहा था क्रिटिसिज्म देना है, कैसे देना है वगैरह. लाइक नाउ से आई एम वर्किंग फॉर एक्या, तो आई टेक ओपिनियन फ्रॉम माई डिजाइन टीम, एंड when I want a layman to give me an opinion, I ask others in Akya's team to give me an opinion कि Canva design कैसे लग रहा है. But when it's a technical opinion, I ask my design team. I don't ask every single person on the team. So who is giving you criticism basically gives the value to the criticism. If that person is a highly relevant person, then unka criticism is something that you should give an ear to and then think over it. If that person is just an outsider giving you an opinion which you don't really need, तो then उनका क्या वैल्यू है वो हमको डिसाइड करना चाहिए कि किसकी क्रिटिसिज्म का कितना वैल्यू है बेस्ड अपॉन व्हाट द टास्क इज. देन पॉइंट 2, from the other side, when you're giving criticism, so there is also a respectful way to give criticism, है ना. मतलब you can't just go and just say कि नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, या your this behavior is unacceptable, that thing's not good, you should change this and that. There has to be a base to what you're saying. मतलब you need to first get in a comfort zone with that person. पहले जानो कि वो पर्सन लिसनिंग स्टेट में है या नहीं, उनको तुम्हारा ओपिनियन चाहिए भी या नहीं. मतलब अगर मैं जाके मेरी फ्रेंड को, say if I go to Adya and I start giving her opinion about her drawing, now she does not need my opinion on her drawing. Na? She knows how to draw, she knows her drawing way better than I have a knowledge of that field. So my opinion, even though I am a very close friend, my opinion will not matter unless she asks me to give an opinion. So unless and until you're asked to give an opinion, try and keep it to yourself. And अगर तुमको ऐसा लग ही रहा है कि नहीं, I have to give this, I have to tell this person, क्योंकि ये बहुत ही critical सा point है, तो say it in a respectful manner. कि मतलब पहले वो person को confidence में लेके हम बता रहे हैं किसी, I know कि तुम्हारा knowledge ज्यादा है, या I'm not that much of an expert in the field, but as a layman I feel ऐसा ऐसा, something like that, कि तुम respectfully बता रहे हो. And तीसरा, as a critic or as someone who is there in that chair of giving someone a critical feedback, it is also important कि हम appreciate करें. मतलब even if you're critiquing yourself, say I write a blog, और blog लिखने के बाद मैं प्रूफ रीड करने के लिए बैठी हूँ blog, and मुझे खुद के कुछ points नहीं अच्छे लगे, खुद के कुछ points बहुत अच्छे लगे, so I need to keep saying that to myself. Wow, ये मैंने कितने अच्छे से लिखा. Okay, I can change this. So when I say Faiza, you can put more effort here. Instead of saying you did not do good enough, we can say you can put in more effort here. खुद को भी या किसी और को भी. Like this is something I use when I'm writing my blogs or when I'm making a Canva design. कि अच्छा ठीक है, I don't like this इतना, मैं इस पे और काम करूँगी. So that way I'm not discouraging myself. I'm just telling myself that there is more scope to my creativity. There is more scope to my ability. So हाँ, basically 3 points. Who is criticizing is important. Who is giving you the critical feedback? How you're giving someone the critical feedback, and if it's an internal criticism or an external person giving it to you, an equal balance of appreciation is also important, and framing it in a positive manner. सलमान समर बोल के रिक्वेस्ट है. अच्छा, Should I take आपके him? पॉइंट बोलो फिर ले लो. Okay, Salman, just give me 2 minutes, and whoever is sending a request, just keep in mind that we are talking about criticism. So anything and everything about giving criticism and taking criticism. So that's the basic topic of the talk show today, right, Faiza? So yes, coming to my 3 points, as a parent, as a coach, as a 43-year-old NLP coach, बहुत बार क्लाइंट आते हैं कि मैम आपको क्या लगता है बताओ. तो जब अपफ्रंट पूछा जाता है ना आपको क्या लगता है बताओ, इट इज स्टिल बिट इजी. Sorry. Please join me. I say something. Samar, yeah, Samar, just give me 2 minutes. Meanwhile, you can keep your question in the question box. Okay, join Samar diary. Samar diary आप आपका सवाल या आपका शेयरिंग जो है ना वो क्वेश्चन के इसमें जाके रख देना. Am I right, Faisal? You can do that, right? हाँ हाँ बिल्कुल. Okay. So now coming to
two things. First is how to deal with criticism, and second is how to take criticism. Sorry, how to give criticism. I'm so sorry. एक तो कोई आपको दे रहा है तो आपको देते आना चाहिए, एक आपको किसी को देते आना चाहिए. एज ए पेरेंट नाउ हम बहुत जल्दी अपने बच्चों को फटाक से बोल देते हैं विदाउट इवन नोइंग कि इन व्हाट स्टेट दे आर, वो सुन सकते हैं कि नहीं, अभी क्या मुझे उस चीज का पूरा मालूमात है, मैं बस बोल देती हूँ. एंड एज ए पेरेंट आई नो फॉर माई डॉटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट a single line coming from her mother to her. So that becomes very important for her. And when I know how important I am as a relationship in that factor, so I should take care 100 times before giving criticism. So that becomes one point for me. कि आप 1000 बार सोचो ना, अगर आपको अभी क्रिटिसाइज करना है तो शायद आप थोड़ी देर के बाद भी करोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. So you have some time to take a pause, to take a deep breath, and then create that atmosphere and then give. Is one thing. Second thing is when it comes to taking. अब लेते वक्त तो अपने हाथ में नहीं रहता है ना बेटा, सामने वाला पटाख से कभी भी कुछ भी बोल सकता है. So that's surely not in your hand. In that case, again, pause. कौन दे रहा है? Who is the person? कैसे दे रहा है? How is he giving it? Criticism मेरे फायदे के लिए बोल रहा है कि मुझे कम दिखाने के लिए बोल रहा है? Who is giving it? And when is he giving it? दे रहा है. क्रिटिसिज्म करने का एक राइट टाइम भी है ना. अगर वो शख्स को सही में मेरी प्रोग्रेस की फिक्र है तो वो राइट टाइम पे क्रिटिसाइज करेगा, राइट तरीके से क्रिटिसाइज करेगा और राइट इंटेंशन से क्रिटिसाइज करेगा. अगर ये तीनों पैरामीटर्स बैठ रहे तो श्योरली यू शुड थिंक ओवर इट. So yes, that are my points. So मतलब आप देखो, आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो गुड, बट दैट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग आदित्य ने जो बोला पिछले टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. व्हेन अ पर्सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो वो बोलता है दैट मैटर्स अ लॉट. जैसे अगर आप मुझे कोई ओपिनियन देते हो तो इट मैटर्स टू मी अ लॉट. आई मीन बिकॉज यू आर माई पेरेंट, बिकॉज ऑफ द relation we have, what you say to me, I'll believe it. अगर आपको याद है ये लास्ट लाइव में आदित्य ने इस पे बोला टॉक्सिक रिलेशन वाला कॉन्टेक्स्ट, बट यहाँ वो क्रिटिसिज्म में भी मुझे अप्लाई हो रहा है कि आप अगर बोल रहे हो आई विल नॉट थिंक ऑन इट, आई विल बिलीव इट. सो एज द सिग्निफिकेंट अदर वी, मतलब जैसे अगर मैं किसी बेस्ट फ्रेंड को बता दूं तो प्रोबेबली माई बेस्ट फ्रेंड विल टेक माई वर्ड फॉर अ फैक्ट. they might just forget subconsciously, क्योंकि वो बॉन्ड इतना क्लोज है. we tend to forget कि ये किसी का ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं. so as a taker I think we should also keep a filter कि क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, who is giving the opinion. if that person is highly significant in your life, तो वो फिल्टर अगर हम रखते हैं कि ये उनका ओपिनियन है या ये कोई फैक्ट है. जैसे sun rises from the east is fact, but sun is bright या sun is hot is an opinion. So वो filter we need to do, especially when it comes to someone who is a very important person. And as a psychology student, यहाँ पे there is this concept of self concept that we as humans, we strive to do our best, we strive to be our best self. Best, we try to achieve our best potential. That is what drives us to do anything. And in that we keep on making an idea about ourselves. जैसे say an image about ourselves. And वो image जब हम बनाते हैं तो हम खुद की भी opinions लेते हैं और दूसरों के भी लेते हैं. तो if our opinions and other people's opinions match, then we have a congruent self, like we have a stable self. और अगर हमारे opinions and what others think about me, like say जैसे if you all have watched Ginny and Georgia, there's this series Ginny and Georgia, तो उसमें there's this one character of Abigail. तो she has a lot of problems घर पे, उसके parents divorce ले रहे होते हैं, so she is going through a lot of trouble, and that trouble वो it comes out as she being bitchy and mean to her friends. तो उसके friends they call her bitchy, they tell you mean. तो for her she is dealing with trouble, she is a victim.
in her own map, but जब वो किसी और की नजर से देखती है तो she is the culprit, she is being mean, that might create an unstable self. तो ऐसे केसेस में I think we should add that filter कि क्या हमारा ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन है, क्या फैक्ट है. एंड आई गेस कोचिंग में भी वही मेन है, चेंजिंग दैट थॉट प्रोसेस, व्हाट यू आर लुकिंग एट इट थ्रू. बट या दैट्स काइंड ऑफ द और बराबर ना बेटा, अभी इंस्टाग्राम पे हम कुछ वीडियो अपलोड करते हैं या कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, जैसे जो अपना आप लाइव जाएगा तो कुछ कमेंट्स, जैसे कल मेरी एक कोई रील अपलोड हुई थी जिसमें म्यूजिक इतनी लाउड हो गई थी और मेरी आवाज ही सुनाई नहीं थी. सो आई गॉट टू मल्टीपल कमेंट्स टेलिंग कि मैम हमको आपकी आवाज सुननी थी लेकिन म्यूजिक बहुत लाउड थी, तो आप वो 25% पे रखो या 20% पे रखो. एंड आई डिडंट इवन न्यू दैट पर्सन, मुझे पता भी नहीं था. बट अब मुझे बताओ, दैट पर्सन इंटेंशन इज वेरी प्योर. इसमें हिडन मैसेज क्या है? दे वांट टू लिसन टू माय वॉइस व्हिच दे वर नॉट एबल टू, एंड दैट्स व्हाई आउट ऑफ द वे जाके कोई अगर इतना बड़ा मैसेज मुझे टाइप करके डाल रहा है, तो do I put it in the label of criticism? I too did not put it in the label of criticism. that I is took it expressing concern. Yeah, that was like expressing concern. So before labeling something as criticism, एक बार लेबल कर दिया ना बेटा कि ये criticism है, then it becomes very difficult for brain also. There will come so many filters. कोई कुछ बोल रहा है, and we have an NLP presupposition. Every behavior has a positive intention. कोई कुछ बोल रहा है, अपने लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम में से एक थोड़ा टाइम निकाल के आपके लाइफ में जो चल रहा है उसके ऊपर कोई कुछ बोल रहा है, इसका मतलब इज इन्वेस्टिंग टाइम, इज इन्वेस्टिंग एनर्जी, इज इन्वेस्टिंग हिज ब्रेन. It can't be very times some sarcastic meaning behind it. There can be some constructive meaning behind it. It's you who has to extract it. And it's you who has to decide when not to extract it. हाँ, कभी कभी छोड़ना भी पड़ेगा ना. sometimes you also have to ignore. NLP now. I'm मेरी सारे रील्स NLP पे है, मेरा सारा कंटेंट NLP पे है. I know for a layman NLP is very difficult. So if I have to increase my number of followers, I have to talk something जो masses को अच्छा लगे. But am I into that field? No. I am here to promote NLP. I will be talking about NLP. तो there will be a tribe. अब उस ट्राइब में से जिसका कोई मैसेज आता है मुझे, तो मैं वो सुनूंगी ना. उस ट्राइब के बाहर जिसको एनएलपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, अगर वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो मैं बोलूंगी भैया राम राम. एंड इवन व्हेन समवन हु नोज एनएलपी, जैसे अभी आप जब मुझसे ओपिनियन लेते हो, मुझसे पूछते हो कि ये कैसा है, वो कैसा है, तो you come to me when you want grammar, you come to me when you want like placement and everything. You don't come to me for your basic NLP knowledge या ये reel का content कैसा है. You don't come to me for that because that is your field of expertise. ये बोल के कि नहीं फैजा को भी NLP आता है, she also knows, she is my daughter. You don't come to me for that. So we also need to know whom we are approaching and for what we are approaching what person. जैसे हम मैथ्स का क्वेश्चन पूछने के लिए इंग्लिश टीचर पास नहीं जाते हैं ना, मैथ्स का क्वेश्चन मैथ्स टीचर से ही पूछते हैं. तो इफ यू गो विद अ मैथ्स क्वेश्चन टू एन इंग्लिश टीचर, शी इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. अ मैथ्स टीचर हुए, ये खुद को भी पता होना चाहिए दैट हाउ मच टाइम आर वी इन्वेस्टिंग ऑन समवन हु इज गोइंग टू गिव अस सम फीडबैक. एंड इज क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक आल्सो, तो अलग चीज है. Yeah, they are too interesting. How the word changes ना. Okay, sorry हाँ. अली मोहम्मद NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरो इज ब्रेन, लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इज तो आपको पता है. जैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर का सीपीयू रहता है, वैसे ह्यूमन का ब्रेन, आपका ब्रेन हो, मेरा हो या फैजा का हो. सॉरी हाँ फैजा, गोइंग ऑफ ट्रैक, बट उनको सिर्फ मैं उतना बता दूं. मेरा ब्रेन हो, फैजा का हो या अली मोहम्मद आपका ब्रेन हो, ब्रेन की एनाटॉमी सबकी सेम है. सबका सेरेब्रम है, सबका सेरेबेलम है, सबका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सबके पास न्यूरॉन्स है. एवरीथिंग इज सेम. तो ब्रेन एज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर वी टेक इट एज ए कंप्यूटर, और उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है, उसकी एक जुबान होती है. अगर और वो जुबान हर किसी की अलग होती है.
मेरी अलग है। जुबान इन द सेंस हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू मैं नहीं बोल रही हूँ। जुबान इन द सेंस क्यों कोई दो लोगों का फटाक से जम जाता है, क्यों किसी दो लोगों का कितनी भी मेहनत करके नहीं जम पाता है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ योर ब्रेन प्रोग्राम्स, how your brain understands the external world, and NLP helps you to identify that. This is one of the application. बहुत सारे applications है, किसी दिन उसके ऊपर हम वो करेंगे, लाइव शो करेंगे। एंड NLP अगर आप सीखते हो तो क्रिटिसिज्म कैसे डील करना है, इट विल बिकम वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। एम आई राइट फैजा? बिल्कुल। और हम कभी कभी ये भी करते हैं, वी डिसरिगार्ड सम क्रिटिसिज्म वेरी इजीली कि इनको क्या ही पता इस बारे में, वी जस्ट डिसरिगार्ड इट कि दिस पर्सन हैज जीरो नॉलेज ऑफ द फील्ड, सो व्हाई टेक दैट पर्सन्स क्रिटिसिज्म। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि दे एक्चुअली हैव अ वैलिड पॉइंट, या देयर पॉइंट वो एंटायरली करेक्ट नहीं होगा, बट इट माइट डायरेक्ट यू इन सम वे। तो अपन डिस्कस करते वक्त आई गेस वी टॉक्ड अबाउट दिस कि पहले सुन लो, सुन लेके देन यू डिसाइड whether you agree with it, you don't agree with it, you want to take it, you don't want to take it. But we don't know everything ना, we don't know everything, we don't know everyone's perspective. और अगर किसी का पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग है, then that can put us to thinking. अपने को कभी कभी ऐसा लगता है कि what we think is exactly what everyone else thinks, but there might be a different perspective, and वो जिसको वो perspective दिख रहा है शायद is not an expert of the field, but they still see that. So listen and then decide on your own. Like आप भी, you take my opinion, not necessary you follow it. Even when it comes to our entire DSCC का team, you take our ideas, not necessary you go with it, but you take, because that helps you direct your brain ka thinking in a way, or it tells you what you don't want. It also tells you what you don't want. Because taking opinions is important. उसको कितना agree करना, apply करना is in our hands. और मुझे लगता है बेटा क्रिटिसिज्म करते वक्त ना दो पिलर्स इंपॉर्टेंट है। हाउ यू टेल ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर बॉडी लैंग्वेज, आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो ना क्रिटिसिज्म। अगर आप उसको अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ, अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ, अच्छे टोनालिटी के साथ अगर दोगे सामने वाले को, अंडरस्टैंडिंग हिज ब्रेन ऑफ मैप, जैसे आपने अभी बोला यू विल सी कितनी बार बोला, मीन्स अगर एक पर्सन विजुअल है और आप उसको ऑडिटरी क्रिटिसिज्म दे रहे हो, हम वो चाह के भी नहीं समझ सकता है ना आपका क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, लेकिन आप उस जुबान में बोल ही नहीं रहे हो जिस जुबान में उसको समझने वाला है। शायद किसी को सिर्फ हाथ में हाथ लेके समझ जाएगा, शायद किसी को कुछ चंद अल्फाज में समझ जाएगा, या शायद किसी को आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। You can't use only one way, that is through your words. Criticism can be expressed visually, criticism can be expressed kinesthetically, criticism can be expressed auditorily. या शायद कोई अच्छी डिश खाना बना के रख दी टेबल पे, सामने वाले ने एकदम अच्छे से खा लिया, and then you land up into criticism. So आप टेस्ट के थ्रू बोलते हैं ना, किसी के दिल को रास्ता पे। हाँ, What is that? अगर आपको मम्मी पापा से परमिशन जब लेनी रहती है तो क्या कुछ पापड़ नहीं बेलते आप, मम्मा 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 मम्मा। So you know very well how to तोड़ो मरोड़ो. So that goes something with criticism also. So yeah, where are we now? What is the time? It's 10 o'clock. Is there someone who wants to join? यार तब किसी को ज्वाइन होना था यार, अभी तो बंदा दिख नहीं रहा है मुझे। आई एम सो सॉरी यार। तो someone who wanted to join. Lot of these people. ऐसे था ना फैजा, पहले इंस्टाग्राम पे लाइव आते थे तो कितना टेंशन रहता था। अभी वी आर सो चिल। Hi Sanya.
Shruti, Shan, Varun. Varun's not a Wisp person, but there are a lot of Wisp people. सारे hearts आ गए, so nice. Book with friends. Thanks, Book with friends, for your smileys. It's my daughter and me. We are talking about criticism. Thanks for the lovely heart. Crazy, crazy evil. ये मेरे comment ऊपर नीचे भी नहीं हो रहे यार साला. हाँ अभी हो गए. अभी हो गए. Chetna Sachdev official. Thanks for joining. Devyani, thanks for joining. Shipra, thanks for joining. So many people are there. Oh. मैंने कुछ और ही तो बोला. So yeah, before we say bye to each other and sum up, Any questions from the audience that you want us to answer? thanks for clicking all the hearts, guys. This is such a critical topic and I should share my experience here. मेरी बेटी ने कुछ आके बताना अच्छा बुरा, मैं मेरे क्रिटिकल कमेंट के साथ जैसे तैयारी बैठी रहती थी. And I don't know why I was like that. हाँ कभी कभी हाँ अभी. सुमित पाटील, थँक्स सुमित पाटील. आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? मराठी बोलता. पाटील म्हणजे मराठी बोललंच पाहिजे असं माझा अपेक्षा आहे, अशी माझी अपेक्षा आहे. शुभम, हाय शुभम, कसा आहेस? आता और criticism देते वक्त ना कभी कभी ये भी होता है कि not every time a person sharing to get a critical feedback. Sometimes we just share to share. वहाँ पे कोई feedback चाहिए ही नहीं होता है, सिर्फ you just expected to listen. वो कितना भी highly valuable चीज हो, highly out of your brain हो या highly rubbish हो, you just have to listen. मतलब जैसे अभी जब मैं आपको कोई इम्यून की चीज बता रहा हूँ, so you don't understand it, you just listen to it, just listen. Yeah, when Adya talks about her paints and everything, I don't understand much, but I listen to it. अब सुन के समझने लगा है, but it's basically that you listen. Their opinion, criticism is not expected at all. So as a giver of the opinion also, we must differentiate कब सुनना है, कब opinion देना है, कब criticize करना है, कब appreciate करना है. ये मतलब self एक understanding होना चाहिए कि सामने वाले का state कैसा है, which NLP helps a lot. You read someone's state ना basically. बेस्ट वॉज फैजा कि अपन वो नहीं, आज तुम कुछ वो बनाए थे फ्लायर, एंड सडनली my daughter and her one NGO group, they are doing some project, right? And they had made one Canva design, और उस Canva design पे था prioritize you, और वो इमेज ऐसी थी कि एक बंदा दूसरे को छतरी दे रहा है. And I just landed up in that room. I saw on the laptop. I said कि जो भी था, the content, I will not go in the story. But don't. That was a criticism, right, Faiza? हाँ. That was a criticism. It's highly useful. Yeah. I mean, I can't go in the content. We can't reveal stuff, abhi. So, but yeah. Yeah. That is a layman's perspective. See, that's a layman's perspective. But that helped. Very true. Very true. सुमित पाटील, हो मॅम. मग तू कुठला आहेस रे? म्हणजे महाराष्ट्रात मग वेअर डू यू बिलॉंग? पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद? Don't flaunt your geography. कारण मला बरं वाटतं मराठी बोलून. माझी पोरगी मराठीत. काय मॅडम, काहीतरी मराठीत पण बोला तुम्ही. कशाला? म्हणजे फर्ग्युसनचे एक्स फर्ग्युसन स्टुडंट आहात तुम्ही. फर्ग्युसन मध्ये तुम्ही मराठीतला आणा, जान्हवीला आणा, ओमला आणा, बोलू की मराठीत. ओम का सैनिक काय रे बेटा? महाजन. ओ महाजन साहेब, आपण आहात का? मला नाही वाटत तो आहे. अभी नहीं है, था पहले. अच्छा, शुभम भंडारे. Who is he? The FC person. एक आध बार उससे बात भी किए थे. ओके, अभी ये बुक विद फ्रेंड्स को तो मैं ले ही लेती. मराठी मेरे को बात करनी है किसी से. क्रिटिसिज्म को मराठी में क्या बोलते हैं?
अभी इसी को पूछेंगे अपन. हाय. हाय मॅम. Hello. हॅलो फैजा. सो मॅम मी मराठीच आहे, महाराष्ट्रामधून आहे, मुंबईमधून. मुंबईचा आहेस? मला आधीच सांग. हा. क्रिटिसिझमला मराठीत काय म्हणतात रे? कशाला? क्रिटिसिझमला. निंदता हा. निंदा 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 निंदा. बरोबर आहे बॉस. आधी तुझ्याबद्दल सांग. मी बेसिकली मुंबईचा आहे मीन्स, आणि इंजिनिअरिंग करतोय आता मी. तुझा आवाज खूप स्लो आहे. आता येतोय? हा. हो. हा. तर मी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग करतोय, फर्स्ट इयर आहे, म्हणजे डिप्लोमा थ्रू लास्ट इयर, म्हणजे डिप्लोमामध्ये भायखळ्यामधून. सो माझा क्वेश्चन आहे मॅम, उद्या माझा युनिट टेस्ट आहे मी अजून अभ्यास काही केला नाहीये, तर मी काय करू आता? आणि तो आमचा लाईव्ह अटेंड करतो. हा काय, कारण की आता बोर होत होतो, म्हटलं लाईव्ह अटेंड करू. बरोबर. आणि कुठला कारण आता book- विषय? इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आणि अभ्यास Third year किती diploma. झालाय? 30-40%. 40%. आता काय ऑनलाईन स्टडीज आहे, हा त्याच्यामुळे. आणि पेपर किती वाजता? तर उद्या 10 वाजता असेल. उद्या 10 वाजता पेपर आहेत. आणि 10 वाजता 10 वाजता. हा पण काय नाही, 2.5 चॅप्टर रहेगा. सो अजून किती उरलंय तुझं? हाफच चॅप्टर झालाय, मीन्स हाफ झालाय. 2 चॅप्टर बाकी आहे. 2 चॅप्टर. आणि त्याला तुला तरी किती वेळ लागेल? आपल्या लाईव्ह नंतर पण नाही, वो हाँ तो एका रात्रीत तो होऊनच जातं. वो पेपर के दिन एक रात में तो हो ही जाता है, सिलेबस कितना भी हो. सो इफेक्टिवली कैसे कर पाऊँ मीन्स. इफेक्ट. अच्छा, मतलब करने वाला येत आहे. हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना मैम. आद्या आई हो रहा है. मैं क्या करूँ इसके लिए? मेरे साइड से हो रहा है. I नहीं think भाई. मतलब मेरा भी इको हो रहा है. एक काम करतो, मैं कट करता हूँ, आप आंसर दे दो मेरे क्वेश्चन, ठीक है? आप फिर जॉइन हो जाओ. हाँ. अच्छा ठीक है, मैं रिजॉइन होतो. ओके. हाँ. आणि मराठीत बोलायचं. हाँ चालेल, मला काही प्रॉब्लेम नाही. आद्या का इतना नाम लिया, देखो आ गई. आद्या तुझे बहुत याद किया. डिजाइनर एंड द डिजाइनर इज देयर. तेरा एग्जाम्पल लेके बोल दिया हमने. आद्या लंबा जिएगी बेटा, तू लंबा. अच्छा मुझे बताओ ऑडियंस, अभी जिसके 2-2.5 चैप्टर बचे हैं, वैसे बात क्रिटिसिज्म की थी, हमारा टॉपिक शिफ्ट हो गया. अगर किसी का 2.5 चैप्टर, हाँ तो भी ठीक है. तो उसको मैंने क्या एडवाइस देना चाहिए? मुझे तो लग रहा है भैया जाओ सो जाओ, अभी जो होएगा सुबह. अमोडी. अभी आ रहा है मैम. आता आला. हाँ पण इको ठीक आहे, होते ठीक जाऊ. होऊ द्या काय प्रॉब्लेम. हा बोला. मग आधी मला सांग, तू मूळचा कुठला आहे? मी म्हणजे धुळा साईडचा आहे. अरे वा. हा खानदेशी आहे, म्हणजे मी हा. हा तिकडे. अच्छा, आता ही माझी पोरगी 17 वर्षाची आहे. तिच्याकडनं ओके. उत्तर पाहिजे का माझ्याकडनं? काय प्रॉब्लेम नाही, फैजानी सांगितलं, तुम्ही सांगितलं तरी चालेल. फैजा मॅडम बोला आता. 12 बार 2 चैप्टर. हाँ एक चैप्टर को 2 घंटा भी. ओके. 4 तासात होईल. आणि तू तसाच अभ्यास करणार आहे. 4 तास 4 तासात म्हणजे small break. Pomodoro. I mean that's my I would do it. I had 2 chapters. इतने टाइम में खत्म करना. But अब I don't know कितने बड़े होते हैं. नहीं मीन्स 30 पेजेस तक रहेगा एक चैप्टर. अरे ही 60 नोट्स pages. हाँ उतना मालूम है. तर काय होईल? तर काय नाही, फ्रेंड करेन मॅम, मग तिकडनं कॉलवर फ्रेंड अभ्यास करेन. तसं पण आम्ही डिसाईड केलंय हाफ करायचं.
जम कारण की तो पण थोडा आजारी आहे ना त्याच्यामुळे. नाहीतर तसा पण त्यांनी केला असता अर्धा, म्हणजे 2.5 मी केला असता, 1 चॅप्टर त्यांनी केला असता. मग कॉलवर आम्ही आता ऑनलाईनच स्टडी आहे ना. Same. तेवढा काय बोलता you have an option ना उद्या ना. या बट वो बीमार हो गया ना, इसकी वजह से वो ऑप्शन थोड़ा कैंसिल हो गया. अभी वो बोला तू ही कर. सो पण तरी you have the option. हाँ यस, वो ग्रुप है हमारा वैसे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो put If only you that want to much test effort. राईट. आणि इतक्या दोन सोबत बोलल्यानंतर तुला थोडी एनर्जी येणार आहे. जाऊन का आपलं बरं? आमचंही काहीतरी कौतुक होईल ना. हो करें मॅम, शुअर. थोडा आधा घंटा पडले वही तो मॅम. आता मला सांग समजा तू अभ्यास छान केला नाही आणि बंद झालं त्याच्यात, मग त्याच्यावर तुला कोणीतरी निंदलं की कसं डील करणार? फर्स्ट इग्नोर करणार सुपर. आणि पण थोडा रिग्रेट होईल मॅम. जर मी अभ्यास नसेल केला तर थोडा रिग्रेट होणार, ते तर कॉमन आहे. म्हणजे असं नाही की इग्नोर केलं तर चाललं जातं, ते आतमध्ये आपल्याला माहितीये की आहे चुकी, तर होतं ते. चुकी नसली तर जास्त फरक पडत नाही. आपली चुकी नसली तर जास्त फरक पडत नाही, पण चुकी असली तर कळतं आपल्याला आतून. खरी गोष्ट. स्वतःला तर माहितीच असतं ना, म्हणजे कोणासोबत ऍग्री करणार नाही करणार तरी आपल्याला माहिती असतं आतून. तेच मॅम, मी NLP पण बघत असतो तुमच्या याच्या थ्रू, तुमचं पेज जेव्हा. हा, कारण की मी कधी तुम्हाला फॉलो स्टार्ट केलेलं, अंकुर सरांना जेव्हा तुम्ही हे केलं, हा तेव्हा लाईव्हला तुम्ही त्यांच्या केलेल्या तिकट तेव्हा मी पण होतो अटेंड करत, तेव्हा फ्रायडेला होता आय थिंक. तर त्या मोमेंट पासून मी फॉलो स्टार्ट केलं. व्हेरी नाईस. आणि मला आवडतं की आपला आतला गिल्ट असतं ते आपल्याला तर माहिती असतं. आणि ते सोडत नाही रे, त्यापेक्षा मग केलेलं बरं ना. केलेलं परवडत ना. एक रात्र जागून काय ठीक होत. हो. आता मला सांग, तुला थोडी नाही, आज मी रात्र जागून करेनच फिक्स, ते तर फिक्स. सकाळी नो गर्लफ्रेंड का तो रेन दो मैम. अरे ऐसे मत बोल यार. नहीं है, अभी तो नहीं है मैम. अच्छा, सो यू आर एलिजिबल एंड हाँ. Oh, very good. All the audience. We have an eligible package from Mumbai, best area. सो मैम, मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, फैजा आपके लिए था. आप कौन से कॉलेज से हो और आप मैम कहाँ से हो? मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट करना है ना फॉलो किया आपको, सो थोड़ा सा या. तो बेसिकली हम नासिक है. आम्ही नासिककर. नासिककर. नॉट मम्मा बट मी. आणि सध्या माझा कॉलेज बिशप्स 12th झालं. आणि मम्मा इज फ्रॉम पुढची बेलगाम कर्नाटक. आणि he has spent her 17 years in Nashik. मैम, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है. Thank you. एंड मैंने आपका जब स्टोरी सुना था, मीन्स जेव्हा तुमची स्टोरी ऐकली ते, की तुम्ही आय थिंक डॉक्टर होते ना पहिले. हो आहे रे बाबा. सॉरी म्हणजे सॉरी डॉक्टर म्हणजे आहे. तर आता फक्त आता NLP प्रॅक्टिशनर त्याच्यामध्ये कन्वर्ट झाले. हा, कोचिंग फील्ड मध्ये कन्वर्ट झाले. हा, कन्वर्ट झाले. तर ते शिफ्ट झाले, कन्वर्ट. तर तेच म्हणणार तुम्ही. तर तिकडनं मी स्टोरी ऐकली तुमची, मग मला आवडलं म्हणून मी फॉलो केलं. तुम्ही बोलले ते ब्ल्यू कलरचं तुम्ही ठेवलेलं अंकुर सरांना बघून, ते तिकडनं स्टार्ट केलं फॉलो. बरोबर आहे रे. आणि मी नाही सुमित सॉरी आशिष सॉरी, आमच्या सगळ्यांचा येतो. आम्हाला काहीच करता येत नाही प्रॉपर आहे मॅम. हो, पण ऑडियन्स इको जातोय.
So yes, Sumit, Tweeted. I was a very bad parent. Very bad parent. म्हणजे खूप त्रास दिलेला माझ्या पोरीला. मोबाईलचे करणं आणि अभ्यासात इंटरफेअर करणं. कोण मित्र आहे, कोण मैत्रीण आहे. म्हणजे एका बाजूला कूल पेरेंट आणि एका बाजूला हिटलर पेरेंट होते की हो माझी पोरगी पत्र लिहून 3दा पत्र मला समजलं होतं की आई अशी नको वागू. आणि मला त्रास होतो याच्याने. I feel like committing suicide. And yes, that is how मी पास नाही करणार. पण या NLP helps a lot. One change, and you see the result now. In life, each other. So यस मैम, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि हाँ, I know. AKH हम अलग बैठे हैं. लेकिन जब से सुमित हमारा आवाज निकल मैंने भी मैम 1-2 बार ज्वाइन किया ना, मेरी वजह से ही इको होता है क्या आवाज. हाँ. सो अभी मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है. समथिंग ऑन सुमित का हाँ, मेरे साइड में ही है. ओके, सो Anything मैं भी else, जाता हूँ. Sumit? नो मैम, इतने ही क्वेश्चन थे. Are बाय you all फैजा. the बाय. best? हाँ, थैंक यू मैम. अभी बैठता हूँ पढ़ाई करने. Alright. बाय. आशिष आ रहा क्या लाईव्ह? आशिष माळी साहेब, आपण बघा आता इको गेला. माझ्या आईला मराठीत बोलायचं रे, येतोस का नाही? Is AKH. I'm taking him live. Oh, Shubham was also there. अच्छा, AKH declined. I take Shubham now. आशीष, I'm missing your brother today. Tell him we are angry. उन्होंने लाइव नहीं ज्वाइन किया. और एक ऐसी एक फ्री लाइव करेंगे where we get आशीष का भाई और Hi Shubham. अच्छा. So आवाज येतोय का? हो, येतोय. तू मराठीत बोलतोस ना? हा, चालतंय, कोणते पण. ओके, विचार. तुझा काही प्रश्न आहे? तू कुठून आहेस, काय करतोस, आधी ते सांग. मी सांग म्हणजे मी फर्ग्युसन मध्ये आहे. हो, आपलं बोलणं झालं होतं. हा, भरपूर वेळा. हो, भरपूर वेळा. हा, आता काय प्रश्न आहे तुझा? माझा प्रश्न नव्हता, सांगायचं होतं म्हणजे आपल्याला एखाद्या वेळेस क्रिटिसिझम सहन करावाच लागतो, म्हणजे त्याला ऑप्शन नसतो मुळात. बरोबर. ज्यावेळेस आपण एखादी करतो त्यावेळेस आपल्याला ते करावं, म्हणजे आपण चूक केली तर ती समोरनं सहन करावीच लागते, त्यामुळे ऑप्शन नसतो. ते कोणी म्हणजे आपल्याला ते म्हणजे ते फिक्स असतं की कितीही शिव्या भेटले तरी ते ऐकावंच लागतात. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे ते म्हणजे खेळात जास्त होतं, बाकीच्या ठिकाणी होत नाही. तिथंच अजून कोण देतं, म्हणजे आमचा लखन दादा, म्हणजे लखन माळी नावाचा IIT मधला मित्र आहे, फर्ग्युसन मधलाच आहे. तो म्हणजे क्रिटिसिझम करताना तो म्हणजे तो सांगतो की चुका काय आहेत आपल्या मुळात. तो त्याची एक भाषा असते की वेगळ्याच प्रकारची, तो शांत प्रकारे सांगतो, ती लँग्वेज वेगळी असते. तू शांतपणे चुका काय आहेत, काय केलं पाहिजे, ते क्रिटिसिझम आपण स्वीकारतो. आणि काय काय वेळेस म्हणजे खूप आत म्हणजे डोक्यावर येतं ते, मग म्हणते जा त्याला म्हणजे दुसऱ्याला मग तुला भारी आहे का, चल मग ह्या भाषेत उत्तर ते तयार केलं जात. अजून म्हणजे असे मित्र पण असतात, म्हणजे ते सहन करावं लागतं, किंवा आपण क्रिटिसिझम करताना पण काही मर्यादा असतात मुळात. म्हणजे आपण काय करतोय, जर खरं ऐकायची म्हणजे तयारी असेल तरच खरं बोलावं. बरोबर आहे, अगदी बरोबर. म्हणजे अक्षय चव्हाण नावाचा जो फिल्म मधला मित्र आहे, त्याने त्याची क्रिटिसिझम पद्धत आहे एक, म्हणजे तो ज्यावेळेस त्याला कोण काही दाखवतो त्याला आधीवरच विचारतो, तुला ते सहन करता येतंय का, मी सांगणार आहे ते. मी चांगलं तुला कौतुक ऐकायची सवय असेल तर मी तसं करणार नाही, मी तुझ्या चुकाही सांगणार आहे. आणि आपण देतानाही तेच करावं, म्हणजे
जर सगळ्यांना जर गोड गोड ऐकायची सवय असेल तर आपल्या हे करू नयेच. बरोबर बरोबर. आधी ते परखायला पाहिजे की समोरचा तेवढं कडक ऐकण्याची तयारीत आहे का, आणि तसंच आपणही ऐकू शकतो का. हा ते तर आहेच. ती तर पहिली स्टेज आहे, हा. तिथून तर सुरुवात. हा ते ऐकावंच लागतं, म्हणजे त्याची सुरुवात घरातूनच होतो, त्यामुळे त्याची मला वाटत नाही ते असं कोण तयार बियार नसतं, असतं ते. बरोबर बरोबर. हा. अच्छा, छान वाटलं तुला लाईव्ह वर भेटून बोलून तुझे विचार ऐकून. हा सध्या ठीक काय आहे. चाललंय, कॉलेज कसं चाललंय. कॉलेज, आता कॉलेजमध्ये काहीच चालू नाही. हा ना. हा फक्त आता सगळं चालू ऑनलाईनच. झालं ना आता. सगळ्यांचं आमचं अजून काहीच नाही, म्हणजे पेपर कॅन्सल झालेत अजून, नाही काय म्हणजे अजून सध्या तर क्रिकेटच चालू आहे. पण नेटचं हे प्रॉब्लेम झालाय, म्हणजे मी लिहू मी लिहू होतो माझं नेट. हँग होतस. नो इश्यूज नो हो इश्यूज. हो पण हो. छान वाटलं तुला भेटून बोलून. असाच लाईव्ह मध्ये येत जा. बाय, गुड नाईट. आय गेस he's got hang तसा. हाँ हाँ, वो लीव कर रहा है शायद से. लेट्स या. अपन भी गुड नाइट करते हैं. इट्स We have ऑलमोस्ट not had dinner. आशीष के कुछ मैसेजेस थे. आशीष प्लीज नेक्स्ट टाइम आई वांट यू ऑन द थर्ड स्क्रीन. देखते हैं नेक्स्ट टाइम को बात है. और शंतनु को भी लेके आना. वो इंस्टा पे नहीं. Oh. So yes guys, before we say off, Faiza, anything closing points you want to share? आज आदित्य को भी मिस किया बेटा अपन ने. हाँ, आज आदित्य को मिस किया. क्लोजिंग नोट बस यही है कि कब दे रहे हो, किससे. Okay, sorry. When you're giving criticism and from whom you're taking criticism, how you're giving it, and what state the person is in to whom you're giving the criticism are the four things you need to keep in mind, I would say. As a giver, कैसे दे रहे हो, and सामने वाले की state, and as a listener, who is giving it and how they're giving it, what are their intentions and stuff. So yeah. मुझे लगता है बेटा क्रिटिसिज्म के बगैर भी तो लाइफ अच्छी नहीं रहेगी ना. ट्रू, बहुत सही बात है. और कोई अपना, बिलीव मी, हर बार कोई सरकास्टिकली नहीं देता है. कोई किसी को तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए परवाह भी नहीं. देता है. हाँ, किसी को तुम्हारी And without परवाह नहीं है. criticism, you couldn't improve. या एंड मुझे तो ऐसे लगता है कि लिव फ्रॉम अदर फिल्टर, the person who is daring to give you criticism is someone who really cares for you, someone who really loves you, someone who wants कि आप फेल ना हो, आप गलत नहीं जाओ, आप आगे बढ़ो. सो आप किस फिल्टर से, किस चश्मे से वो क्रिटिसिज्म देखते हो, किस अंदाज से सुनते हो, आपके ऊपर है ना. हम सामने वाले को तो चेंज नहीं कर सकते, वो कैसे भी देख के चला जाएगा. But how I look at it, how I hear it, and how I perceive it. Like मैंने हरे रंग का चश्मा लगाया तो हरा दिखेगा, नीले रंग का लगाया तो नीला दिखेगा. If मैं आगे बढ़ रही हूँ तो take it, if आगे नहीं बढ़ रही हूँ तो leave it. But होने चाहिए, जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो सच्चे दिल से आपको क्रिटिसाइज करें. And that also indicates एक relationship का bonding. कि कितना Yeah. तुम किसी को freely खुल के बोल सकते हो कि this is something where you can improve, this is something you could do differently. That Like can yesterday, happen my only friend was criticizing me. I had some fight with one of my friends, and whether I should talk, whether I should you not can do talk. way better in that case. And my daughter was like, "Mama, this is so toxic, and you should not do this." मैंने कुछ सुना नहीं, मैंने लिया भी नहीं. But yes, what she was telling had some grounds, had some points. The way she was telling it, वो ऐसे इंटेस्टाइन में से बोल रही थी. So ये भी तो समझो ना कि सामने वाला कितनी शिद्दत से चाह रहा है कि आपको कुछ बताए. Just don't ignore it.
At least listen और to it. हाँ, एक last point I would want to add here. Age. Please don't take age to be a determinant of the person's significance of the criticism. Because I mean, I am a 17-year-old and I can't really freely give criticism to people elder than me because I'm not sure if they're going to take it well. मतलब I can give criticism only to those people who actually understand कि हाँ, I am giving it out of knowledge. It is clearly possible that someone younger to you has enough knowledge about it. जैसे मतलब सोशल मीडिया ही ले लो, अभी हमारे केस में उल्टा है, my mom teaches it to me, but in a lot of cases our age group has more knowledge about how technology works than our parents ka age group. So sometimes it is okay to take criticism from someone younger to you, and this is like एकदम दिल से बात कि don't disregard someone's criticism just क्योंकि वो तुमसे छोटे हैं या वो तुम्हारे जितने एक्सपीरियंस नहीं है. शायद उनके एक्सपीरियंसेस तुम्हारे से बहुत अलग हैं एंड बहुत अलग पर्सपेक्टिव वो तुमको ऑफर कर सकते हैं. आई मीन दिस इज फ्रॉम द इंटेस्टाइन वाला पॉइंट कि डोंट टेक एज बिकॉज आई एम यंग, आई एम वेरी यंग व्हेन इट कम्स टू द पीपल आई इंटरैक्ट विद. वो मेरे से बहुत बड़े हैं यूजुअली, बट if I can't really give them a criticism constructively, I can't contribute to them, and then conversation hinder हो जाता है, communication hinder हो जाता है, because at the end everything comes down to communication. So please don't take age as a factor to determine how significant someone's criticism is. वेरी ट्रू, क्योंकि बेटा आप बराबर बोल रहे हो, क्रिटिसिज्म को एज से रिलेट करना या हमारा रहता, तेरे को क्या पता, तूने कब किया ये सब, तूने किया ही नहीं है तो तू क्या बोलेगा, अरे भैया मैं वो सारे काम नहीं करूंगी ना जो पैदा कर रही है, बट स्टिल आई कैन क्रिटिसाइज. दैट डजंट मीन आई हैव टू फर्स्ट डू इट. अगर वो मुझे करने ही होते तो टोटली अलग, मैं तो उसकी मेंटर हो जाती ना. बट परसेप्चुअल पोजिशंस नाम की एक एनएलपी में एक्सरसाइज है. देयर इज अ पोजीशन 1, देयर इज अ पोजीशन 2 एंड देयर इज अ पोजीशन 3. आप पोजीशन 1 में हो, कोई फॉर्चुनेटली थर्ड पोजीशन में से वो सिनारियो को देख के आपको कुछ बता रहा है ना, तो जरूरी नहीं उसने वो एक्सपीरियंस जिया हो, जरूरी नहीं वो आपकी उम्र का हो, जरूरी नहीं उसको कुछ भी समझो आप क्या कर रहे हो, बट स्टिल क्योंकि वो उस थर्ड पोजीशन से वो देख रहा है जहां आप हो ही नहीं, तो आपको बैठे बिठाए कोई मस्त फीडबैक मिल रहा है इम्प्रूवमेंट का. जैसे आज सुन लो. अपना जैसे आज अपना हुआ, या व्हेन यू आल्सो टेल मी कि मम्मा ये मत करो कंटेंट में या वो मत करो, मैं ये नहीं बोल सकती फैजा तूने क्या कितने कोचिंग किए है क्या, इतने क्लाइंट्स देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं भैया, लेकिन ये मेरा व्यू है, ये मेरा पॉइंट है, लेना है लो, छोड़ना है छोड़ो, बट सुनो तो सही. Okay, so on that note, it was a nice live theater today. Thanks for Sumit from Bombay. nice discussion. Very nice. हमारा डिनर अभी बाकी है, तो we'll have dinner and see you guys next Saturday in Madhu Talks. और yes, keep joining us, keep sending us the topic, आपको किस टॉपिक पे लाइव चाहिए, हम वो टॉपिक लेके डिस्कशन पे आ जाएंगे. Keep bringing in the suggestions. Good night, Yes. all. Good night. Good night. Bye bye.